हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस चैनल पर इंग्लिश सेट है और ये मेरा इंग्लिश टीचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मैं आर्य कुशवाहा आपको यहाँ पर आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है वो पढ़ाऊँगा और मैं ऑनलाइन आपको लेसन्स दूँगा जिसमें कि पहला पार्ट जो होगा वो वर्ड मीनिंग का होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो एक्सप्लेन वर्ड मीनिंग और यूसेज का होगा और तीसरा पार्ट बाकी जो पार्ट है, जो टेक्स्ट है, वो आपका 2-3 हिस्सों में अपडेट किया जाएगा और उसके अलावा हम लैंग्वेज और एक्सरसाइज़ उसके बाद करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ, मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है। मेरी संक्षिप्त ब्रीफ प्रोफ़ाइल ये है कि मैं इसके पहले वर्तमान में मैं भारत सरकार के संस्थान में एक राजपत्रित पद पर कार्य कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं नवोदय विद्यालय में टीजीटी इंग्लिश रह चुका हूँ स्थायी रूप से। तो इंग्लिश मैंने नवोदय में पढ़ाई है और यहाँ पर ये चैनल बाइलिंगुअल रहने वाला है। मैं आपको पहले हिंदी में या पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके साथ-साथ आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा। So dear students, welcome you on this channel. This is English Set Hai and you are on board. We are going to cover all the lessons of your textbook and this coverage would be very comprehensive since you have hopped on this channel, so you should know that how is this channel different. ये अलग क्यों है? अलग इसलिए है कि I will give you a very comprehensive idea, comprehensive explanation and in-depth analysis of the content of the text. This definitely you are going to solve your exam issue, learn for exam, but at the same time, I am going to teach you here basically the English language in a way you should learn English as a language of behavior so that you can behave and think in English and think in English and then you can speak in English. है ना? This is the most important thing. So generally what happens that you read or study English in an environment where you get to learn English through Hindi medium. That is fine, that is right, but since you have to appear in the board, you should try to learn the English as much as possible. And one way is to learn English is to listen to it, and is to listen to the language. And just by reading you cannot learn the language. So this channel is going to provide you a very exhaustive, in-depth study of your textbook, and that is why this channel is unique. So I have also given this introductory session in ninth class textbook series also, but this is the first lesson for 10th class students. So this is my brief introduction. Gradually you would be accustomed to my way of teaching and stay in this video, stay on this channel, and I promise you, assure you that you are going to get something which is really unique. मैं कहूँगा कि इस चैनल पर आप बने रहिए, इस चैनल पर आप आगे बढ़िए और आपको मिलेगा कुछ यूनिक, कुछ अद्वितीय। ये यूट्यूब पर जो हिट सब्सक्राइब बटन वाला जो चल रहा है मामला, वैसा नहीं है इस चैनल पर। हियर वी आर टू अंडरस्टैंड, है ना, टू लव द लैंग्वेज। वी आर हियर फॉर नॉलेज, है ना, क्योंकि हर जगह एक तरह की पूरे पूरे हर जगह आप बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी विच इज just selling the less things, but here we are here for knowledge, and if you really want to learn something, stay on with me. Okay, so let us quickly cover today the difficult word usage in this chapter, letter to God. I will give you the brief introduction of it in next part. Here today we will cover just the word meaning part. Crest means पहाड़ी की चोटी. English use top part of hill or a mountain. इंटीमेटली, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिंदी में जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं और हिंदी में उसको कैसे प्रोनाउंस करना है ये हम पढ़ना भूल जाते हैं। इस वजह से
कम से कम 20% जो शब्द हैं उसको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस वी मिस प्रोनाउंस ऑलमोस्ट 20% ऑफ वर्ड्स, बिकॉज यू कैन प्रोनाउंस ओनली इफ यू लिसन और यू have read it or you listen to it carefully. Okay. Satisfied संतुष्ट. Predict भविष्यवाणी करना. To say what will happen in future, है ना. Draped ढका हुआ. Cover, है ना, जैसे कोई साड़ी पहनता है तो it can be said that her or his body is draped in sari. We draped the statue with saffron cloth, है ना. Draped. हेलस्टोन्स, ओले. हेलस्टोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अभी चैप्टर में, तो इसको आप इसकी स्पेलिंग देख रट लेना चाहिए. ओला, स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस फॉल लाइक रेन. मॉर्टिफाइड, बहुत परेशान और दुखी. वेरी एम्बेरेस्ड, शॉक्ड. यहाँ भी दो वर्ड है, इसको भी देख लें. लोकस्ट, है ना, टिड्डियाँ. टिड्डी जो आते हैं. इंसेक्ट्स दैट फ्लाई इन बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय कॉर्प्स. इसको एक और वर्ड कहा जाता है इसके लिए, स्वाम. SWORM, स्वाम. स्वाम ऑफ लोकस्ट, इसको ये भी कहा जाता है. ग्रुप नहीं, इसको स्वाम कहा जाता है. सो सॉरोफुल, उदासी से भरा. सॉरोफुल, उदासी. फुल ऑफ सैडनेस. सॉलिटरी, अकेला, सुनसान. सिंगल, है ना, देवदास की तरह. कॉन्शियस, ठीक से इसको याद, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो. एंड कॉन्शियस, अंतरात्मा. सही गलत की समझ नहीं, अंतरात्मा. एंड इनर सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. ये गलत मीनिंग दिख दिया यहाँ पे. कॉन्शियस मतलब एक, बस एक भाव, अपने होने का भाव. एमिएबल, मिलनसार. इसका एक और दूसरा एक वर्ड होता है एमिकेबल, बट यहाँ आपको दिया गया है एमिएबल, तो अच्छा वर्ड है, आगे काम आएगा. रेजोल्यूशन, आप लेते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नए वर्ष का पक्का वादा. फॉर्म डिसीजन टू डू समथिंग, जो कि होता नहीं है. कंटेंटमेंट, संतोष, सुकून. हैप्पी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना, कंटेंटमेंट. क्रूक्स, धोखेबाज, बेईमान लोग, है ना, क्रूक्स. अब यहाँ पर ये हो गया, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स जैसे थे. अब हम जो है ये जो चीज आप देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी समथिंग विच यू डोंट फाइंड एनीवेयर एल्स, यू डोंट फाइंड अदरवाइज, विच इज नॉट टॉट इन योर ट्रेडिशनल इंग्लिश क्लासेस. तो अब हम कुछ ऐसा देखेंगे जो आपको आपके सामान्य अंग्रेजी की कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसको अगर आप उपयोग करें तो यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश, राइट बेटर, है ना. सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. एवरीडे एक्सप्रेशंस, है ना. गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, है ना. जैसे इसको आप इसमें उदाहरण दिया हुआ, अगर भगवान ने चाहा तो, ईश्वर की इच्छा रही तो. व्हेन यू यूज होप, व्हेन यू होप समथिंग, गॉड विल हैपन, गुड विल हैपन इन फ्यूचर. एग्जांपल, वी विल पास आवर एग्जाम्स विद गुड मार्क्स, गॉड विलिंग, है ना. ऐसे ही इसको यूज होता है. एग्जाम्पल टू गॉड विलिंग, इट वोंट रेन ड्यूरिंग आवर स्कूल क्रिकेट मैच टुमारो. कल जब हमारा स्कूल का खेल हो तो ऐसा ना हो, भगवान न करें ऐसा हो, वैसा वाला ये, ठीक है. यहाँ पे इसका आप यूसेज कर सकते हैं. और आप कल, आज इसको सुन रहे हैं, कल इसको आप दिन में कम से कम 2 बार किसी वाक्य में लाने की कोशिश करिए. टुडे यू आर लिसनिंग टू इट एंड टुमारो ट्राई टू स्पीक इट ट्वाइस इन एनी मैनर विथ एनीबडी. ओके. एंड an ox of a man working like an animal, बहुत मेहनती जानवर की तरह कड़ी मेहनत करने वाला. To describe someone who works extremely hard physically. Okay. So my uncle is an ox of a man and he works for factory 12 hours. तो आप इसका दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं. Not the slightest, जरा भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं, है ना. क्या तुम खुश हो? Not the slightest. क्या तुमको मजा आया? Not the slightest, है ना. तो to show that there is absolutely zero doubt, surprise or fear, absolutely zero doubt, तो एकदम नहीं. She showed not the slightest fear when she saw the street dog. उसने बिल्कुल भी कुत्ता देखा तो डरी नहीं, ठीक है. There is not the slightest doubt that India will win the match. कोई भय ही नहीं, कोई इसमें डाउट ही नहीं कि भारत जो है मैच नहीं जीतेगा. हिंदी मीनिंग, टोटल लॉस, कंप्लीट लॉस, पूरी तरह से नुकसान, सब कुछ खत्म हो जाना. वी आर ए टोटल लॉस when something is completely ruined, है ना. The fire burned the shop down, it was total loss. Don't cry over broken toy, it is a total loss, है ना. We lost it all. इसको ऐसे कर सकते हैं, we are completely at lost.
and another for no reason then, for no other reason than, सिर्फ इसलिए और इसलिए, किसी और कारण से नहीं बल्कि, है ना, then. When to use, when you do something just for one specific simple pleasure or reason. He went to the terrace for no other reason than to cool then enjoy the cool evening breeze. I called my father for no other reason to say hello, है ना. और कोई सेंटेंस आप ऐसे बुला सकते हैं. I called you at my home for no other reason than to have a tea, है ना, than to watch a TV, watch a movie. सो ऐसे कर सकते हैं. ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, को सारी मेहनत पानी में मिल गई, गई भैंस पानी में, ऐसा. व्हेन यू वर्क वेरी हार्ड ऑन समथिंग बट द रिजल्ट इज फेलियर, बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई की, बहुत कुछ किया, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए, है ना, तो इसको कहें ऑल और वर्क्स फॉर नथिंग. या आपके माता पिता आपको बहुत मेहनत से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उनको पता चलता है कि ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग. ठीक है, जब वो आपको रील बनाते हुए पकड़ते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट बिफोर आई कुड सेव माई कंप्यूटर प्रोजेक्ट, जब तक सेव नहीं किया सब उड़ गया, ऑल माई वर्क फॉर नथिंग, है ना. सो इन दिस वे यू कैन सी that we have finished the word meaning and its usage. In next part, I'm going to give you a very interesting, comprehensive, and memorable explanation of a letter to God. Thank you.